آگے بڑھتے ہیں۔ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پھر اعلان، کہتے ہیں آئین اور قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، معاون خصوصی ملک احمد خان، عطا تارڑ اور دیگر شریک ہوئے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف، مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنما ویڈیو لنک سے اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس میں شرکاء کو پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اب تک ہونے والی بات چیت اور پی ٹی آئی کے مطالبات پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ آئین اور قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ اور سپریم کورٹ کے حکم پر مذاکرات کر رہے ہیں، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا اگر 14 مئی کے اندر اسمبلی تحلیل ہو تو ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ بجٹ کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید کہا 1 مئی کو پشاور، لاہور، اسلام آباد میں ریلی نکالیں گے۔ عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ آزاد نہیں ہوتی۔ پرویز الہی کے گھر کا بختر بند گاڑی سے دروازہ توڑا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر مذاکرات کر رہے ہیں، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر 14 مئی کے اندر اسمبلی تحلیل ہو تو ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے گھر چھاپے سے ہم رنجیدہ ہیں۔ تحریک انصاف میز پر نیک نیتی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جمود ٹوٹے اور ملک کو دلدل سے باہر نکالیں۔ لاہور میں پرویز الہی کے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑ ہے۔ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فیصلہ کولیشن پارٹنر نے کرنا ہے، وہ کس سمت میں جانا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب پروٹیکٹیو بیل پر تھے، جانتے ہوئے کہ وہ بیل پر ہیں، ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، چار دیواری کو پامال کیا گیا، سرچ وارنٹ کے بغیر گھر میں داخل ہوئے۔ میں تو کمال داد دیتا ہوں ان کی فیملی، ان کی ایک سیاسی گھرانہ ہے، سیاسی سوجھ بوجھ ہے، اور انہوں نے ایسے مشکلات ماضی میں دیکھی ہیں تو انہوں نے بڑی بردباری سے، بڑی ہمت سے مستورات نے ساری اس کارروائی کو ہینڈل کیا۔ لیکن افسوسناک بات، مجھے اتنا ذاتی طور پر اس کا دکھ ہوا کہ جس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں، یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مذاکرات کے لیے تو ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ۔ یہ کیا آپ ماحول بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہے؟ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے درمیان رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو وزیر خزانہ نے کہا کہ پرویز الہی کے گھر پر ہونے والی کارروائی سے وفاقی حکومت کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی واقعے کی وجوہات کا ابھی علم ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اسحاق ڈار کو پرویز الہی کے خاندان کے جذبات بارے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے جذبات سے اپنی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم نے بھی ہمیشہ قانون کا سامنا کیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اگر اگلا الیکشن متنازع ہوا تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بحران ہی کافی ہوگا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جمہوری پارٹی الیکشن سے فرار نہیں کر سکتی۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ کیا الیکشن آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اکٹھا ہونا چاہیے، یا پنجاب کا الیکشن 5 مہینے پہلے کر کے آپ پنجاب کو پاکستان کے وفاق پہ بالادستی دے دیں کہ پھر پنجاب یہ فیصلہ کیا کرے گا کہ مرکز میں آئندہ کون حکومت بنائے گا۔
सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और वो पंजाब के पहले इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि निज़ाम फरसूदा हो चुका, डिलीवर नहीं कर सकता। अदलिया का काम आइन की तशरीह है, कानून बनाना नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि मामलात को हल करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, आपको उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों को लेते हैं, काबिल तरीन लोगों को लेते हैं, इम्तिहान से लेते हैं, मेरिट पर लेते हैं, और हम उनको बिल्कुल मीडियोकर बनाकर, बिलो एवरेज बनाकर हम इस निज़ाम से निकालते हैं। ये बदनसीबी है। मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे कोई ये समझाए कि वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो एक एसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं, वफाक में जाके काम करें। तो आप क्या कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सूबाई हुकूमत की समझ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो सेहत और तालीम है, उसकी जिम्मेदारी डेवलपमेंट है, वो किस तरह आवाम को पहुँचाएगी। हम मिर्जा साहब भी और मैं, हम दोनों बिला शक और शुबा हम इस बात के हक में हैं कि इस मुल्क में नए प्रॉब्लम्स बना दें। ये निज़ाम नहीं चल रहा सूबों का। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। एक जमात आती है और दूसरी जाती है, मगर जुल्म और करप्शन का निज़ाम वही कायम रहता है। पेशावर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पर मुत्तफिक किया कि शफाफ इलेक्शन हम सब की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं और निगरान हुकूमत का टेनेवर भी आईन के लिहाज से ख़त्म हो रहा है। इनका एक ही काम था कि इलेक्शन के लिए माहौल और तैयारी करे, लेकिन इलेक्शन के अलावा इन्होंने हर वो काम किया। इसलिए इस मुल्क में जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होना चाहिए। मैंने इसलिए सियासी जमातों को एक पॉइंट एजेंडे पर कि इलेक्शन कब हो और शफाफ इलेक्शन मेरी ज़रूरत है, दानली से पाक इलेक्शन मेरा मुतालबा है। लेकिन ये एक पार्टी के मुतालबे पर नहीं होगा, न पीडीएम के मुतालबे पर होगा। इलेक्शन हम सब का मौजू है, हम सब ने मिलकर तारीख तय करना है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे की मुबैना ऑडियो लीक। नजम साकिब पार्टी टिकट के लेन देन पर पीटीआई के रहनुमा अबूजर और मियां उजैर एडवोकेट से बातचीत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का सोशल मीडिया पर चर्चा। ऑडियो में नजम साकिब ने मियां उजैर से मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर रकम के लेन देन पर गुफ्तगू की। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की गई मुबैना ऑडियो में टिकट दिलवाने से मुतालिक बात करते हुए उम्मीदवार अबूजर चद्धड़ नजम साकिब को कहते हैं कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, अभी टिकट छाप दें, देर ना करें, टाइम थोड़ा रह गया है। जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि आप बाबा का शुक्रिया अदा करने आ जाएं, उन्होंने बहुत मेहनत की। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। ऑडियो लीक में शामिल दूसरी कॉल में नजम साकिब की मियां उजैर से गुफ्तगू होती है, जिसमें मियां उजैर कहता है कि व्हाट्सएप देखें, क्या ये अबूजर ने भेजी है आपको? जिस पर नजम साकिब कहते हैं यार मैं भी वकील हूँ। नजम साकिब कहते हैं तो फिर क्या सीन है? मियां उजैर कहता है कि मैं बात कर लेता हूँ। नजम साकिब कहते हैं कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, ये पहले से तय था।
1.20 से नीचे न लेना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मियां उजैर कहता है कि तुम फिर फोन पर ये बातें कर रहे हो। नजम साकिब कहते हैं कि मेरे लिए इतना मसला नहीं है, 1.20 से नीचे ना लेना उससे, जिस पर मियां उजैर ओके कह देता है। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड में खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया और कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत के दौरान बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें 2 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। बेंच ने पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कानून पर अमल दरामद रोकते हुए अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी किया था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही इदारे के चीफ के खिलाफ कानूनी मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही चीफ के खिलाफ मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला। डीईसी इरफान कोसर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम खत सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इरफान कोसर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में सवाल उठाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले और अब कितने असासे हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बेटे के असासों की तफसीलात भी मांगी हैं और इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट की तफसीलात मुहैया करने की भी दरख्वास्त की है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम मालूमात 5 मई तक फराहम करने का मुतालबा किया है। अखराजात और खसारा बेलगाम हो रहा है, सनतें तबाह हो रही हैं। तरसीलात ज़र, बरामदात, सरमायाकारी और सनती तरक्की में भी कमी हो चुकी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने जुलाई से मार्च तक की बदतरीन मौशी सूरत हाल के अदाद शुमार जारी कर दिए। तफसीलात के लिए देखिए मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट। अखराजात और खसारे बेलगाम, सन्नती तरक्की की शरह -5.6% पर आ गई। बेरोजगारी के खदशात में इजाफा, तरसीलात ज़र में 10.8%, बरामदात 11% कम हो गई। सरमायाकारी में 98% की कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने रवा माली साल जुलाई से मार्च तक की मुआशी रिपोर्ट जारी कर। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च तक तरसीलात ज़र कम होकर 20.5 अरब डॉलर और बरामदात 21.1 अरब डॉलर रही, जबकि मालियाती खसारा गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़कर 2392 अरब रुपए हो गया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में मालियाती खसारा 2273 अरब रुपए था। रवा माली साल जुलाई से मार्च ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर रह गए, जो गुज़श्ता माली साल के इस दौरानिये में 16.57 अरब डॉलर थे। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 27.3% रही। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल अभी तक दरामदात का हुजम 21% कमी के साथ 41.5 अरब डॉलर रहा। जुलाई से मार्च लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ की बजाय कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने IMF की शर्त पर आइंदा माली साल के बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स के लिए FBR स्पेशल स्कीम तैयार कर रहा है। IMF की जानिब से नई शर्त आइंदा माली साल के बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लाई जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पेशल स्कीम के तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स के लिए FBR स्पेशल स्कीम तैयार कर रहा है। IMF ने 20 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दी है। स्पेशल स्कीम में शामिल दुकानदारों को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों के लिए स्कीम लॉन्च होगी।
पंजाब ने चश्मा जहलम तोसा पंजद नहरों की बंदिश पर इरसा को एहतजाजी मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में कहा गया है कि दोनों नहरों से जनूबी पंजाब को पानी की सप्लाई की जाती है। पानी ना मिलने से कपास की फसल को नाकाबिल तलाफी नुकसान का भी खदशा है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा के आगाज पर ही पानी बहरान दस्तक देने लगा। पंजाब का जनूबी पंजाब को पानी सप्लाई करने वाली 2 नहरों की बंदिश पर इरसा से एहतजाज। कपास की फसल को नाकाबिल तलाफी नुकसान का खतरा जाहिर कर दिया। पंजाब ने चश्मा जेलम और तोसा पंजरद नहरें ना खोलने पर इरसा को एहतजाजी मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में कहा गया है कि नहरें बंद होने पर जनूबी पंजाब को मंगला से पानी की सप्लाई की जा रही है। खदशा है मंगला डैम वक्त से पहले खाली न हो जाए। पंजाब का मजीद कहना है कि सूबा सिंध पानी के लॉसेस पर मिस रिपोर्टिंग कर रहा है। पंजाब ने इरसा से चश्मा जेलम और तोसा पंजनद नहरों से 15,000 क्यूसेक पानी के अखराज का मुतालबा किया है। इरसा ने मामले पर आइंदा हफ्ते मंगल को इजलास तलब कर लिया, जबकि पंजाब के एहतजाज पर सिंध से वजाहत भी तलब कर ली है। सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाला हब कॉजवे नदी के तेज बहाव के बायस बहने लगा। इंतजामिया की बड़ी गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी के बावजूद मुसाफिर बसें और कोचेस कॉजवे से गुजर रही हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। हम शहर से आए थे अपने कारोबारी सिलसिले में, लेकिन अब यहाँ आके फंस गए। आना जाना यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ से पानी का तेज बहाव और सरकती हुई ये सड़क, ये हब कॉजवे है जो सिंध को बलूचिस्तान से जोड़ती है। हालिया बारिशों से पानी के बहाव में तेजी और नदी में तुगयानी के बायस अब ये कॉजवे टूटना शुरू हो गया है। पुल टूटा हुआ है, वो पुल टूटा हुआ है, वो जो बाईपास पे पुल बना हुआ है वो भी खतरे में है। अब ये आने जाने का रास्ता है, कराची सिंध का जो है वो दरवाज़ा है, तो और कोई रास्ता है नहीं। यहाँ से नादरन बाईपास से वो भी फुल जाम है, जिसकी वजह से यहाँ हब चौकी का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो हब चौकी में फंसे हुए वो हब चौकी में है। अब शहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कॉजवे की खस्ता हाली के बायस इंतजामिया ने सड़क को हैवी ट्रैफिक और बसों के लिए बंद तो किया, लेकिन इसके बावजूद मुसाफिर बसें अब भी इससे गुजर रही हैं, जो हादसे का सबब बन सकती हैं। खतरनाक तो है, बड़ी गाड़ियां तो यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों के लिए बिल्कुल ममनू हो गया है। वहाँ से गाड़ी उतार रही है, यहाँ से पैदल जा रहे हैं। अभी यहाँ पैदल ये तो कितना खतरनाक रास्ता है, यहाँ जो गिर जाए कोई नुकसान है। वहाँ से जो है ना वो पैदल आ रहे हैं वहाँ से। हब शहर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। कॉजवे का 1 से 2 किलोमीटर का ये सफर शहरी पैदल ही कर रहे हैं। हब कॉजवे को 6 माह पहले ही करोड़ों रुपए लागत से तामीर किया गया था, लेकिन चंद माह बाद ही ये टूट फूट का शिकार है।